मैं जिथे खड़ा है कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई हवाई अड्डा नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ एयरपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ अंदर। सो बिल्कुल जहाज़ आ चुके हैं आप। कितना खर्चा वैसे किया गया इसमें? ये जहाज़ खरीदा गया, आप बनाया गया है? नहीं, ये सर खरीदा गया है। जैसे मैंने ये देखा भी है कि आपके जितने एम्प्लॉई हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है लाइक एज ए जैसे एम्प्लॉइज़ एयरप्लेन के, वही है चीज़। ये हमारा जो प्लेन है 100 की सीटिंग है, एक साइड 4 की सीटिंग है, एक साइड 6 की सीटिंग है सर। एक तरफ 4, दूसरी तरफ 6। यस सर। मतलब इसमें एक टाइम में कितने आदमी बैठ सकते हैं अंदाजन? 100 सीटिंग सर। 100 सीटिंग बनाई यहाँ एक टाइम में अंदर एरोप्लेन के अंदर जो सर्व करना है, कोई नई चीज़ है हमारे लिए, तो जो भी स्टाफ है वो सारा वेल ट्रेंड है। पीछे भी देख सकते हैं क्या, कहाँ से सर्विस होता है? बिल्कुल सर, मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए सर। सो देखते हैं कि वो किचन जहाँ से ये तैयार होता है और हमारे GM साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे हंड्रेड्स लोगों जो जहाज़ में सफ़र करने के लिए हज़ारों या लाखों रुपए खर्चे पड़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये में मात्र आप जहाज़ में का जो आनंद ले सकते हो, एरोप्लेन का जो आनंद ले सकते हो। खाना खा रहे हैं तो देखता है लोकेशन जी, खिड़कियाँ जिमें जहाज़ जो फ्लाइंग कर रहा है उड़िया ਉੱਪਰ। तो साडा भी इस तरह ਅਸੀਂ बैठे हैं तो खाना जो टेबल पर पहुँच चुका है। खाना बड़ा स्वाद खाना लगता, असली फीलिंग हो रही है कि ਅਸੀਂ किसी प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਮ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜਕਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲਗੇਜ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਰੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੀ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂਪਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਊਚਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਆ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਅਰਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਟੇਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਆਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ EMPLOYEES ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੇਟ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ओरिजिनल फीलिंग हो रही है जी। बहुत सारे कस्टमर ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਮੰਗੋ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਈ ਵਧੀਆ। ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਫੀਲਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਫੀਲ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ GM ਨਰੇਸ਼ ਠਾकुर ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? नमस्कार सर, मेरा नाम सर नरेश ठाकुर है और मैं एज ए जनरल मैनेजर यहाँ पे डेजिग्नेशन पे हूँ। और जो हमारा एक न्यू कंसेप्ट आया है, ये आया है एरोप्लेन के अंदर मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट, जिसमें हम इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और थाई फूड सर्व करते हैं। और इसका प्रोसेस वैसे ही है जैसे एक हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, बोर्डिंग कार्ड लेना पड़ता है। तो ये हमारा यहाँ का बोर्डिंग कार्ड है। इसमें जितने लोग और जो कैश लिखा जाता है उसी के अनुसार हम अंदर सीट में प्रोवाइड की जाती है। तो पर टिकट क्या रेट है इस पर? ये पर पर्सन है वो 200 रहता है। और जो हमारा बिल बनता है उसमें से रिडीम हो जाता है। लाइक एज ए टिकट इसलिए लिया जाता है, मैक्सिमम जो हमारे आज के न्यूज़ जनरेशन है, ये ऊपर आके काफ़ी टाइम पर सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं। एक नई चीज़ आई है, तो ये ओनली सिर्फ इसके लिए है कि जो हमारा ऊपर जो टाइम लगे और बोर्डिंग कार्ड का जो टाइम लगे, मतलब जो कम सीटों के कारण वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगे, और अपना जो लंच या डिनर जो भी टाइम है उस पर वो आराम से खाना खाकर वापस जाए। कहाँ फिर चलें, आप देखते हैं। आओ चलें। सो GMs के साथ चलते हैं, देखते हैं कि कैसे पूरा अरेंजमेंट है, क्या क्या एंट्री है। वैसे मैं चलते बात भी करूँगा। ये प्लान आपके मन में है, कैसे है ये? ऐसा लगता है ओरिजिनल है, कैसे तैयार किया गया, कितना टाइम लगा? ये है तो सर ओरिजिनल ही है, ये प्लान तो ओरिजिनल ही है सर। ये जो भी हमारे ऑनर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके एक थॉट मन में आया कि भाई हमने प्लेन के अंदर मैक्सिमम आपने देखा होगा अलग अलग जगह, किसी जैसे कोलकाता ट्रेन चलती थी उसके अंदर रेस्टोरेंट है। अब बड़े जो ट्रालेज है उसके अंदर भी रेस्टोरेंट बने हुए हैं अलग अलग जगह, बसों में भी है। तो एक उसी की सोच के कारण जो है एक एरोप्लेन में सीटिंग दी गई है। इसको तैयार करने के लिए वैसे कितना टाइम लगा, कितना टाइम? सर इसको मैक्सिमम जो है ये 2.5 या 3 साल से ये वर्क चला हुआ है। जो अभी हमारी ओपनिंग हुई इसको अभी 18 दिन हुए हैं। और जो यहाँ के लोग हैं अभी काफ़ी रश पड़ता है, मतलब 100 की सीटिंग है तो 600 हमारी वेटिंग पे है। चलिए आप देखते हैं, बात भी करेंगे। और सर ये भी है कि यहाँ पे एंट्री करने के लिए जब नीचे पास ले लेते हैं तो कितना टाइम वेटिंग भी करनी पड़ती है, कितना टाइम लगता है? सर मैक्सिमम है जो हाफ इन आवर्स तो लेके चलना पड़ता है, कम से कम है 3-4 घंटे भी करने 3-4 सैटरडे संडे 4 घंटे भी वेटिंग पड़ती है। तो इसमें कितना खर्चा वैसे किया गया? इसमें ये जहाज़ खरीदा गया, बनाया गया है? नहीं, ये सर खरीदा गया है। और इसमें मैक्सिमम मेरे ख्याल जो हमें बताया गया है वो 3 करोड़ के आसपास में लाया गया है। ओके।
तो चलिए फिर दिखाते हैं क्या क्या कैसे सर्विस होता है, कितने आपके यहाँ पे एम्प्लॉई काम करते हैं। जैसे मैंने ये देखा भी है कि आपके जितने एम्प्लॉई हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है लाइक एज ए जैसे देखते हैं होते हैं एम्प्लॉइज़ एयरप्लेन के, वही है चीज़। जो भी हमारे वर्कर है एक थीम के अनुसार उनको वो ड्रेस दी गई है। जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन के अंदर की ड्रेस होती है कि होस्टेस की क्या ड्रेस है, कैप्टन जी की क्या ड्रेस है, तो हमने वैसे ही हमने अपने जो स्टाफ है उसको तैयार किया गया है। उसी तरीके से सर्विस दी जाती है, उसी तरीके से फूड सर्विस सर्व किया जाता है। ये हमारा, हाँ जी जी बताइए। ये हमारा जो प्लेन है 100 की सीटिंग है, एक साइड 4 की सीटिंग है, एक साइड 6 की सीटिंग है सर। एक तरफ 4 दूसरी तरफ 6, यस सर। मतलब इसमें एक टाइम में कितने आदमी बैठ सकते हैं अंदाजन? 100 सीटिंग सर। 100 सीटिंग बनाई। यहाँ एक टाइम में अंदर आता अच्छा, कैसा कैसा खाना, कौन सा फ्लेवर जो लोगों की पसंद होती है वो लेते हैं? है सर। मैक्सिमम जो पंजाबी लोग हैं वो मैक्सिमम चटपटा फूड पसंद करते हैं। थाई थोड़ा कम चलता है, लेकिन जो इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, ये मतलब ये कह सकते हैं कि 70% फूड जो है इंडियन, 30% अपना चाइनीज़। जो थाई है वो बहुत कम लाइक करते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी फूड है, कोकोनट बेस है थाईलैंड का फूड, तो थोड़ा कम परसेंटेज पे है। तो इसकी अगर बात करें पर थाली क्या इसका कैसा रेट रखते हैं? क्योंकि लोगों को जेब बोझ भी तो उतने पड़ता लोगों के ऊपर कि ज़्यादा कॉस्टली है, एक बार आगे ज़्यादा कॉस्ट हो गया, नहीं हम सेकंड। ऐसा भी है कि खाएं अच्छा लगे, जेब से भी सस्ता लगे, फिर दोबारा वापस आए? इसमें सर हमने जो एक थाली का प्रोसेस होता है वो रखा नहीं है। हमारा एक पोर्शन है जो सफिशिएंट 2 या 3% के लिए होता है। साथ में हमारी अपनी बेकरी भी है। अगर जैसे बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उसके लिए जो केक है ऑर्डर अगर रिजर्वेशन पे हम तैयार भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा है जिसका बर्थडे हो, हैप्पी एनिवर्सरी हो या कुछ भी ऐसी गुड विशेष हो तो उसके लिए भी सेपरेट आप तैयार करके देते हो? बिल्कुल सर। इसके लिए हमारे पास ये एरोप्लेन ही नहीं है, हमारे पास एक VIP लॉन्च जो नीचे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे है, और साथ में कैफ़े भी है। अगर 40-50 से लेकर 100 तक जो सीटिंग है वो हम वहाँ पे एज ए बफेट भी तैयार देते हैं। अच्छा, इसमें देखे जाए तो जो आपकी सर्व होती है किचन है साथ में ही? बिल्कुल सर। उसके जो कहते हैं जो कुक होते हैं जिसको, वो कहाँ से आए हैं? स्पेशल बुलाए गए हैं या फिर ट्रेनिंग यहाँ से? सर जो भी जितना भी यहाँ पे स्टाफ है मैक्सिमम जो है, कुछ चंडीगढ़ से है, कुछ जम्मू से है, कुछ लुधियाना से है, कुछ जालंधर से है। मैक्सिमम जो स्टाफ है हिमाचल का है और चंडीगढ़ का है। सब ट्रेंड है सब? बिल्कुल सर। जो भी स्टाफ है एक वेल ट्रेंडेड है, क्योंकि जो यहाँ का एक कल्चर है, नया कल्चर है, नया एक हमारा एरोप्लेन के अंदर जो सर्व करना है एक नई चीज़ है हमारे लिए। तो जो भी स्टाफ है वो सारा वेल ट्रेंडेड है। जितने भी शेफ़ हैं बिल्कुल ट्रेंड हैं। और पीछे भी देख सकते हैं क्या कहाँ से सर्विस होता है? बिल्कुल सर, मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए सर। सो देखते हैं कि वो किचन जहाँ से ये तैयार होता है, और हमारे GM साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक साइड 6 चेयर लगी हुई है, 4 लगी हुई हैं। तो टाइम बड़ा लगता है क्योंकि वेटिंग बहुत चलती है। जब संडे होता है तो 5-5 घंटे लोगों को वेट करना पड़ता है। सो देख सकते पूरी यूनिफॉर्म नीचे से भी हमने दिखाया कि जितने इसके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी अपनी अपनी यूनिफॉर्म है। यहाँ जो जहाज़ में बैठे लोग खाने का आनंद ले रहे हैं उनको जो सर्व कर रहे हैं उनकी यूनिफॉर्म है वो भी एक सेपरेट है। सभी के अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म बनाई हुई है। सो पूरा प्लान लोगों का एक आनंद आता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो जहाज़ में सफ़र करने के लिए हज़ारों या लाखों रुपए खर्चे पड़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये में मात्र आप जहाज़ में का जो आनंद ले सकते हो, एरोप्लेन का जो आनंद ले सकते हो। यहाँ से लोडिंग होता है सामान, ये पोर्शन बनाया है जहाँ से लगेज जो जहाज़ में जाता है वो उसको आपने किचन में बना दिया। ये भी ध्यान कैसे प्लानिंग होगी इसको इसके साथ जोड़ा जाए? जैसे भी अभी जो हमारी एरोप्लेन की जो सीटिंग है उसके ऊपर एक लगेज के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं वो हम यूज़ करते हैं सर। अपने जो कटलरी, क्रॉकरी, बोतल वाटर लाइक ऐसे अपने आप को तैयार करने के लिए। वैसे वहाँ पे अगर आप एरोप्लेन में जाते हो तो वहाँ लगेज रखा जाता है, और जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारी कटलरी एंड क्रॉकरी यूज़ करते हैं। ये कैसे मन में आ गया? जब वैसे लोग यहाँ से गुजरते हैं तो लोगों को एक भलेखा भी लगता है कि यार ये एरोप्लेन कहीं उतर गया, क्या हुआ, यहाँ स्टैंड कर गया, ऐसा भी लोगों में एक विचार आ जाता है मन में। बिल्कुल सर, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं कि सोचते हैं कि यहाँ एरोप्लेन रखा गया है, तो बार बार एक बार नहीं, दिन में कम से कम 100 गेस्ट ऐसे आते हैं जो इसके बारे में सिर्फ पूछते हैं कि ये कैसे है, क्या है, इसके अंदर क्या
कुजीन जो सर्व की जाती है, या ये सिर्फ ऐसे देखने के लिए रखा गया है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो जिसको हम बताते हैं कि हमारा जो एक है फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, कैजुअल फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। तो बेस्ट कह सकते हैं चीप एंड बेस्ट बिल्कुल है, क्योंकि 200 रुपये में बहुत कम टिकट है। नहीं तो आम जहाज़ की सफ़र करो तो हज़ारों में है या लाखों में है, फॉरन जाना है तो लाखों खर्चने पड़ते हैं, देश के इधर उधर जाना है तो हज़ारों में है। लेकिन ये अमृतसर का सेकंड एयरपोर्ट बन गया है, ऐसा लगता है ना? बिल्कुल सर, जो हमारा मेन्यू है सर, मेन्यू भी हमारा एक बिल्कुल रीज़नेबल है। ज़्यादा एक अगर आप चंडीगढ़ की तुलना करोगे तो उससे हाफ रेट पे, जैसे एक दाल मखनी का जो एक रेट है चंडीगढ़ में वो 599 का है, तो 299 का है। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੜਿਆ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਖਾਣਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਕੈਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਲਾਈਟ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਔਰ ਵਿੰਡੋ ਥਣੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਡਾਰੀ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।